Hello friends, how are you? In our last class we completed the chapter number 4th, the structure of atom. And in today's class we will discuss about the question answers of this chapter. Before starting the question answer, in the last class I did a mistake that I wrote the isotope of iodine 121. By mistake I wrote, but it is actually 131. So sorry for that. Okay, the iodine which is used in the treatment of goiter disease, that is iodine 131, and by mistake I wrote here 121. So sorry for that. Okay, now let me consider the question answer. Firstly, before starting, I think all of you collect your books. Okay, the first question is, compare the properties of electron, proton and neutron. And in the starting of this, we discussed about that what is the properties of electron, where the electrons found, what are the properties of electron, where the protons are found. Okay, so I think we already discussed in the chapter. Okay, in the notes you will find the question, there is a table of comparison between the electron, proton and neutron. Okay, so collect that and do that question. Okay, that was our first question. Now the second question is, what are the limitation of J.J. Thomson's model of atom? What are the limitation of Thomson's atomic model? And I think you can do it. We already discussed about that. The Thomson model, which is called plum pudding model. Plum pudding model, and in that model the main problem, it could not explain the Rutherford's gold foil experiment. We discussed about it. Okay, so from the notes you can do it. Third question, what are the limitations of Rutherford's model of atom? In the third question we have to write the limitation of Rutherford's atomic model. And you know that what is the limitation? Rutherford could not explain the stability of atom. Rutherford could not explain the stability of atom because according to the Maxwell theory, that if a charged particle rotate, then it radiate energy, and if atom electron radiate energy, then it will not stable, because due to the loss of energy the path of rotation becomes a spiral, and due to the spiral motion finally the electron will collapse into the nucleus. Okay, so that was the limitation of Rutherford's atomic model. Fourth question is, describe the Bohr's atomic model, and we already discussed about that, so I think you can do. Okay, fifth question, compare all the proposed model of atom given in this chapter. In this fifth question we have to compare Thomson, Rutherford and Niels Bohr atomic model. Niels Bohr's atomic models. We have to compare all of these three. That means what is the fundamental principle, what they tell about the nucleus, what they tell about the electron, what they tell about the orbitals. Okay, so I think you can do it by comparing these three. Okay, sixth question is, I'm just discussing about that because these questions are theoretical portion, and in your notes that we provided you we already discussed about that. Okay,
and there all the questions, these questions answers are given in described manner. So I'm just memorizing you that where the answer is these questions. Sixth question, summarize the rules of writing of distribution of electron in the various shells of the first 18 elements. सिक्स क्वेश्चन में अपने को रूल्स लिखने हैं. दैट मीन्स अपने को बताना है बोर-बुरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. अपने को बोर-बुरी स्कीम बताना है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में. क्या थी? फर्स्ट था electrons filled in the energy in the increasing order k, l, m and then n. Second rule tha the maximum number of electrons, the maximum electron in the shell, that is 2n square, and if we calculate that, then the k shell there are 2 electrons, l has 8, m shell has 18 and n shell has 32. Got it? And the third rule was the maximum number of electrons, the maximum electron in outermost shell can be 8 electrons. कितने हो सकते हैं outermost shell में? 8 electrons हो सकते हैं. Got it? So that was our sixth question. Clear? I think you can do it. Now the seventh question is describe the valency. Describe the valency by taking the example of silicon and oxygen. In the sixth, seventh question, we have to describe the valency by taking the example of silicon and oxygen. Valency को अपने को define करना है silicon और oxygen का example लेते हुए. तो valency आप define कर सकते हो. The number of electrons which are gained, lose or shared by an atom is known as its valency. The combining capacity of an atom is known as its valency. और third definition अपनी थी the number of bonds which are formed by an atom is known as its valency. Got it? Now we have to take the example of silicon and oxygen to describe it. We have to take the example of silicon. तो सबसे पहले अपन उसी की बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन. तो पहले ऑक्सीजन का एग्जाम्पल ले लें. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन में कितना होता है? 8. सो इलेक्ट्रॉन इज 2 and 6. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल? द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2 and 6. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल? दैट आर 6. सो it need how many electrons? 2 electrons. So its tendency is so. अब इसका आंसर अपन ने इसके जैसे ही अपन ने नोट्स में किया हुआ है. ध्यान दे देना, आपके पास जो शीट है नोट्स की उसमें आपको इससे सिमिलर एग्जांपल मिल जाएंगे. तो थ्योरेटिकल पोर्शन आपको लिखना है so that the oxygen has tendency to receive 2 electrons, hence its valency is 2. कर सकते हैं आप लोग? Got it or not? अपन ने ये जो मैं लाइन जो डॉटेड कर रखी है ये बिल्कुल वही है जैसे अपन ने जब स्टार्टिंग में अपन ने एग्जांपल लिए थे वैलेंसी वाले केस में. तो अपन ने एक के बारे में डिस्कशन किया था. तो यहां पर वो लाइन आनी है सीधी सीधी. देख सकते हो ना आप? सेकेंड एग्जांपल अपन ले, दैट इज सिलिकॉन. सेकेंड एग्जांपल इज सिलिकॉन. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14. सो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, 8, 10. कितना होगा लास्ट में? कितना बच गया? 4. सॉरी, दैट इज सिलिकॉन. 4. outermost shell has 4 electrons. So how many it required? 4 electrons. So इसकी टेंडेंसी क्या होगी? या तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने की. तो अपन बोल सकते हैं so the tendency of silicon is receiving 4 electron, hence its
वैलेंसी इज 4. राइट? तो बता सकते हो ना कि उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? दैट इज 4. गॉट इट? नाउ 8 क्वेश्चन. 7 क्वेश्चन तक समझ में आ गया? 8 क्वेश्चन है अपने को एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स. अपने को एक्सप्लेन करना है फोर टर्म्स है जिसको अपने को एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर. 2 क्लास पहले अपन ने डिस्कस किया था विथ एग्जांपल, कर सकते हो. सेकंड जो करना है दैट इज मास नंबर. लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर. मास नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज मास नंबर. बता सकते हो. थर्ड, isotopes. What is isotope? The atoms of an element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. Example के साथ डिफाइन कर सकते हैं आप. फोर्थ, that is isobar. Atoms of different elements having different atomic mass, different atomic numbers but have same mass number are known as isobars. एग्जाम्पल लिया था अपन ने आर्गन और कैल्शियम का. गॉट इट? और फिर बाद में आपको बताना है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स के यूज तो अपन ने 3 डिस्कस किए थे. फर्स्ट, यूरेनियम 235 238 यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. आयोडीन 131 गोइटर डिजीज. कोबाल्ट 60 इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. आई थिंक यू कैन राइट इट. ओके, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको थ्योरेटिकली आपको अपने नोट्स से फाइंड आउट करने हैं. गॉट इट? नाउ अब अपन कुछ न्यूमेरिकल्स की साइड में अपन इसको कंसीडर करते हैं. The next question is, 9th question is, Na plus has completely filled K and L shells. ये स्टेटमेंट अपने को एक्सप्लेन करना है. क्वेश्चन इज Na plus has completely filled K and L shells. एक्सप्लेन. इस चीज को अपने को एक्सप्लेन करना है. इसके लिए अपन सोडियम का एग्जांपल अपन ले सकते हैं. इफ वी कंसीडर द सोडियम, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281 because sodium's atomic number is 11, so its configuration is 281. In the K shell 2, L shell 8, M shell 1. In making Na plus कब बनेगा? आपको याद होगा अपन एक डिस्कशन किया था. जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है. 1 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव. 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव. और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन. गॉट इट? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है. और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. गॉट इट? ये अपन ने उस टाइम डिस्कस किया था. तो यहां पर क्या हो रहा है? Na जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? Na प्लस. तो वो क्या कर रहा है? +1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. तो इन मेकिंग Na प्लस, सोडियम donate, or we can say that lose 1 electron. So जब ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन सा जाएगा? हमेशा आउटरमोस्ट शेल का. सो Na प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया? 2 8. नाउ K shell 2 electrons filled, L shell 8 electron filled. Got it? So इसलिए अपन बोल सकते हैं hence
Na plus has completely filled K and L shells. Got it? इसलिए अपन बोल सकते हैं कि जो Na प्लस उसमें K और L shells completely filled होती है. Got it? Clear? Now, 10th question. Question number 10 is, if bromine atom is available in the form of say two isotopes, bromine जो है वो दो isotop, एक तो है Br that is 79 39 17 sorry 35 79 इतना हो, इस आइसोटॉप की फॉर्म में हो, कितना परसेंट? 49.7%. and 80 35 81 sorry 81 35 Br that is in 50.3%. Got it? Now we have to calculate the average atomic mass of bromine. अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है ब्रोमीन का. Got it? सॉरी, हाँ, एवरेज एटॉमिक मास अपने को कैलकुलेट करना है ब्रोमीन का. Got it? बहुत इजी है, आप जानते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज मास. अब ब्रोमीन का निकाल रहे हैं तो अपन बोल सकते हैं एवरेज मास ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप. कितना है मास नंबर? 79 मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज कितना है? 49.7 डिवाइडेड बाय 100 प्लस मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटॉप कितना आ गया? 81 मल्टीप्लाइड बाय इट्स परसेंटेज 50.3 डिवाइडेड बाय 1000. याद आया फॉर्मूला? मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 1000. मास नंबर ऑफ सेकंड आइसोटॉप परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100. That is divided by 100. That is also divided by 100. Okay. Now मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना होता है. You can do it. कर सकते हैं ना आप आगे? बीच में हिंट दे देता हूं इसका. इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो मिड के अंदर यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 39.263 और जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40.743. गॉट इट? और दोनों का टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 336 6 और 4 0 7 और 2 9 और 1 0 6 0 0 फिर आ गया पॉइंट 9 और 0 9 और एक कैरी कर गया तो दैट इज 10 3 और 4 7 और 1 8 तो दैट इज 80.006 U. यूनिफाइड मास यूनिट होती है इसकी. गॉट इट? अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से ये 10th वाला क्वेश्चन अपने को करना होता है. क्लियर? नाउ 11th क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना. इसको सॉल्व करना है मिड में, कर लोगे ना आराम से. सिंपल मैथमेटिक्स है. मल्टीप्लाई करो 100 से डिवाइड कर दो. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 11. In the question number 11, the average atomic mass of a sample X is 16.2 U. अपने को किसी भी एक कोई भी एक एलिमेंट है X, उसका एवरेज एटॉमिक मास अपने को दे रखा है. दैट इज एवरेज एटॉमिक
मास ऑफ एक्स अपने को दे रखा है, दैट इज 16.2 U. Got it? What is the percentage of its isotopes? 16 8x and 18 8x. इसके दो आइसोटॉप है, एक तो है अपना 16 8x और दूसरा है 18 8x. अपने को पूछा है कि भैया इनका परसेंटेज कितना कितना होगा. गॉट इट? तो जैसे अपन ने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स पैटर्न में अपने को करना है. अब अपने को करना है क्या होगा, यहां पर अपन एज्यूम करते हैं. अपन क्या करेंगे, यहां पर किसी एक को एज्यूम करेंगे. मान लीजिए इसका परसेंटेज अपन ने मान लिया कितना है, दैट इज x. कितना मान लिया अपन, x% इसका मान लेते हैं. गॉट इट? दैट इज x%. तो ये कितना बच गया, टोटल सैंपल 100% है, इसमें से ये x गया तो ये कितना बच गया, 100 माइनस x%. गॉट इट? तो इस तरीके से अपन ने परसेंटेज को इनका एज्यूम कर लिया. अब अपन न्यूमेरिकल पे आते हैं. सिंस, अगर अपन क्वेश्चन में बात करें तो सिंस एवरेज एटॉमिक मास ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइसोटॉप का मास नंबर ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100 प्लस मास नंबर ऑफ सेकेंड आइसोटॉप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ सेकेंड आइसोटॉप डिवाइडेड बाय 100. गॉट इट? वैल्यूज पुट करनी है वो अपने को. कितना है, दैट इज 16.2 U इज इक्वल्स टू, ये कितना है अपना मास नंबर फर्स्ट वाले का कितना है 16 मल्टीप्लाइड परसेंटेज कितना ले रखा है अपन ने फर्स्ट वाले का x डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेकेंड वाले का मास नंबर कितना है 18 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कितना ले रखा है उसका 100 माइनस x डिवाइडेड बाय 100. अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो दैट इज 16x डिवाइडेड बाय 100. इसको अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा 1800 माइनस 18x डिवाइडेड बाय 100. गॉट इट? ये आएगा इसका आंसर. अब इसको और सॉल्व करो, दैट इज 16.2 U is equals to 16.2 U is equals to, दोनों का एलसीएम कितना लेने अपन 100, दैट इज 100. ये कितना रह गया 16x प्लस 1800 माइनस 18x. अब इस 100 को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास एक इक्वेशन फॉर्म में इधर आ जाएगा. इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, पॉइंट हट गया तो कितना आ गया 16 2 एक जीरो, तो पॉइंट हटाने में यूज हो गया, एक जीरो बच गया इज इक्वल्स टू, इसका कितना बचेगा, ये डिजिट तो ऐसी कैसी रहेगी, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बच जाएगा माइनस का 2x. अब 2x इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, से आगे का यहां है. ओके, 2x इधर आ गया, 2x इज इक्वल्स टू 1800 माइनस ये इधर चला गया, ये इधर ले आओ तो दैट इज 1620. तो 2x इज इक्वल्स टू कितना बच गया 180. तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 90%. x की वैल्यू कितनी है 90%. तो अपन बोल सकते हैं सो ये दैट मीन्स 16x 8 is equals to 90%.
और दूसरा कौन सा वाला 18x 8 इज इक्वल्स टू x 90 रखोगे तो कितना बच गया, दैट इज 10%. Got it? Understand or not? Clear? So these are the some numericals of this chapter. The remaining we will discuss in next class.